All right. So dimensions are the power of the base quantities. Base quantity कितनी बार repeat हुई है, that power will indicate, and whether in numerator or denominator. ठीक है. For example, average speed has got dimension of length or distance 1 and dimensions of time is -1. Numerator में होगा ये shifted to, in fact it will be in denominator. When shifted to numerator it will become -1. तो time की dimension -1 and distance or length की dimension +1 in speed. All right. Uses to check the correctness of any relation. Any given relation is correct or incorrect. We have to use the dimension for that checking. And deriving the relation between various physical quantity. And third one is converting from one system of unit to other system of unit. These are the three applications we are going to do with the help of dimensions. Okay. Then we have seen now base quantities like length and mass. We don't have to write full name. We have to write their symbol. Dimensional symbols are provided. They are fixed in all the books. They will not be changing. NCERT book में जो है वही सभी जगह. Length की dimension L, mass की dimension M, time की dimensional symbol. Dimensional symbol I am taking. And dimensions तो 1 रहेंगी इनकी 1 1 1. Dimension symbol is L, mass का dimension symbol is M, time का T. अगर 1, I told 1 रहेंगे अगर they are repeated only once in that relation, they are coming only once. Length अगर एक बार आई है तो power 1 रहेगी. Length 2 बार आ सकती है किसी quantity में. Area में area is length into width, length into breadth, है ना. Both are distances are length. दोनों की dimension L into L square हो जाएगा. Area में in case of area dimension of length will be 2. 2 बार repeat हुई. जो power होती है that indicates how many times that base quantity is repeated. That is the indication with the dimensions. Dimensions हमें क्या indication देता है? That base quantity how many times it is repeated in that particular relation. ठीक है. तो पहले हम symbol discuss कर रहे हैं. Length का L, mass का M, time का T, electric current का A है. जो unit है वही symbol है dimensional symbol. Temperature का जो unit है same is the dimensional symbol. And luminous intensity CD and amount of substance mole. Whatever units, they are the dimensional symbol. And first 3 quantities, unke first alphabets are dimensional symbol. Up to here we did it. And then again we took the same example. Speed is equal to distance upon time. It is coming LT minus 1. Symbol दिया. अभी हमने symbol repeat किया. उसका distance का symbol length का symbol L, time का T, and T को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया -1. तो ये उसकी डायमेंशन है. बट कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग M will also be written, but M is not there, तो 0 लिखेंगे. M L1, M0, L1, T minus 1. तो in speed, dimension of mass is 0. Mass doesn't come in that relation. 0 means dimension 0 means power 0 means that particular physical quantity is not present in that. Length की dimension 1 है. Length is comes only in once. And time also, time की -1 है. It means time is once, and that also in denominator, because minus indicates कि वो denominator में था. So this is the dimensional formula for speed, and same will be for velocity also. Velocity का displacement रहेगा. Displacement is nothing but a length only. That will have the dimension symbol. तो ये speed का भी रहेगा और velocity का भी रहेगा. Dimensional formula. Now you can ask your doubts. ठीक है. Up to here we did yesterday. Now you can ask your doubts. You see, everything is visible here. Now, for using these 3 relations, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये 3 application सीखने के लिए we have to learn the dimensional formula. जैसे हमने speed का सीख लिया dimensional formula, we have to learn at least 20 or more dimensional formula to have these 3 applications.
तो they are easy, one by one we will be just doing. देखते जाओ one by one. देखो सबसे पहले हम किसका करेंगे. Now next topic is dimensional formula for various physical quantities. सबसे पहले एरिया का. तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे हम लोग. एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ. तो लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा, एल. विड्थ इज आल्सो लेंथ, तो एल इंटू एल, तो दैट कम्स एल स्क्वायर. तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला एम इज नॉट इन दिस रिलेशन, एम की पावर 0. लेंथ इज रिपीटेड ट्वाइस, पावर 2, टाइम इज 0. So this is the dimensional formula, or we write only these three symbols, not that you will not start writing all these. ये सब नहीं लिखना है, A0, K0, Z0. So this is not the part of the convention. Convention में only 3. If fourth one is there, ये है तो इसके बाद आ जाएगा. Any of them or 5 are there then. Otherwise these 3. Volume का क्या होगा बोलो फिर. LQ. लेंथ विड्थ एंड हाइट है ना, तीनों का एल होगा. लेंथ विड्थ एंड हाइट, एल. ऑल थ्री आर लेंथ, ऑल थ्री आर डिस्टेंसेस. डिस्टेंस का सिंबल क्या है, एल. दिस इज एल क्यूब, बट इसको ऐसे लिखेंगे m0 l3 t0. लेंथ इज रिपीटेड थ्राइस इन द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम. बोलो इसमें, these are the basic things. बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, anybody has any problem can just ask. And then somebody is new here today, anybody has joined, because numbers looking are more here today. कोई नया है क्या आज? Somebody is doing first time. Ma'am didn't tell anything. कौन एक्स्ट्रा है today? Nobody. Okay. चलो. Any difficulty so far? Quickly बोलो. No, sir. No, sir. Ipsita, any difficulty here so far? बोलिए. No, sir. Okay, noted. Manushri, no problem. No, sir. Okay, okay. तो ऐसे ही अभी एक के बाद एक लिखते जाएंगे, मतलब दे विल बी जस्ट प्रीवियस पार्ट का ही कुछ एक्सटेंशन होगा. Let us see now. Mass density. Do you remember formula? You have to remember. Otherwise, you cannot write the dimensions. Mass density is what? Anybody, do you know relation for mass density? क्या होता है बोलो? Mass upon volume. Mass upon volume. तो वॉल्यूम का भी हमने सीखा था. मास का तो है, मास का क्या होगा, सिंबल. मास का डायमेंशन सिंबल चेक करो. एम है, देखो जो मैंने बोला, whatever the first letter is there, same is the dimensional symbol. m divided by l cube. ये क्या आएगा, m1 l cube है ना, माइनस है ना, न्यूमरेटर में गया माइनस हो जाएगा. तो m1 l cube माइनस में और t0, l minus 3, l to the power minus 3 t0. So in this, in mass density, mass comes only once, that also in numerator, and length is repeated thrice, or distance is repeated thrice, and that also in denominator, therefore minus. Now, ठीक है यहाँ तक. Speed and velocity just now we are done. I am writing directly. m0. Okay, ठीक है, फार्मूला लिख दो. अदरवाइज तो ये हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, both are same as far as dimensions are concerned. This is the drawback of the dimension. क्या drawback है? Can you pinpoint what is the drawback of dimensions? We don't know whether vector or scalar quantity. हमें ये नहीं पता लगेगा dimension देख के. We cannot say whether it is vector or scalar, or we cannot say कि two or more physical quantity may have same dimensions. जैसे speed and velocity का same dimension आने वाला, क्या आएगा, l t, that will be lt minus 1 when we write the formula m0 l1 t minus 1. 1 को यहाँ पे you write 1 or don't write 1 doesn't matter.
and both are same. If you write 1 also, it is same. If you don't write any power, that also 1. NCERT book, they are not writing 1. -1 है तो लिखना ही पड़ेगा. +1 they are not writing. So we will also not write. ठीक है? So this is one of the drawbacks of the dimensions. If somebody asks you, what are the drawbacks? This is one. Two physical quantities are having same dimensions, and we don't know which one will be this. And neither it will indicate whether vector quantity है या scalar है. That also. Some drawbacks are there, but many advantages are there. We'll see the applications will be counted as advantages. है ना? Acceleration का क्या आएगा बोलो? Acceleration is change of velocity. Change of velocity का तो जो velocity का होगा वही dimension change of velocity का होगा. Velocity का dimension क्या है? LT minus 1. Time का नीचे एक t और आ जाएगा. This will be LT minus 2. So dimension formula will be M0 L1 t minus 2. No problem. Now next one you do yourself. यहीं पे करना है क्लास में. देखो, you have to do yourself. Force. Force को tension भी बोल सकते हैं, पता है? Tension is equivalent to force. Thrust भी होता है. Thrust is also nothing but a perpendicular force. Tension is also the force, and force, of course. So all three will have. Not only these three. आगे चल के हम normal reaction पढ़ते हैं. Normal reaction will have the same. It will have the dimension of force. Friction पढ़ते हैं, friction का भी force से relation होता है. So many more will be there, but at least three you know. Tension, thrust, and force, they are same. So what will be the dimension? Find out and tell me. यहाँ पे मैं लिख दूंगा direct. MLT minus 2. Force is equal to mass into acceleration, है ना? तो m का mass का m आ गया. Acceleration का हमने ऊपर we have done this, है ना? Okay, mass का देखो यहाँ पे mass का लिख दो m, acceleration का ये लिख दो LT minus 2. सबको ब्रैकेट में लिख दो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में LT minus 2. यहाँ तक ठीक है? बोलो, जस्ट लेट मी टेक योर फीडबैक. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, कुछ sir. प्रॉब्लम जा रहे हैं? Anybody has Sir. any problem? I will repeat Sir. again. हाँ बोलो. बोलो. 6th वाला एक्सप्लेन करेंगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. Okay, 6 में हम लोग फोर्स पे आ गए. आफ्टर एक्सेलरेशन फोर्स है, एंड टेंशन को भी फोर्स बोला जाता है ना. सपोज भी पुल एनी स्ट्रिंग, रोप को पुल करो तो उसमें टेंशन डेवलप होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में. तो दे हैव दैट रिस्टोरिंग टेंडेंसी. तो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, टेंशन डेवलप्स. तो टेंशन एंड फोर्स विल हैव सेम डायमेंशन. एंड थ्रस्ट आल्सो. थ्रस्ट हमने पढ़ा है, प्रेशर में आता है. परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं. तो ऑल थ्री आर फोर्सेस. एंड F इज इक्वल टू m. हमने पढ़ा है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास का क्या होगा? कैपिटल M. एक्सेलरेशन का ये हमने ऊपर पढ़ा था, उसको एज इट इज लिख दिया. तो दोनों को एक साथ लिख दिया, m1 L1 t minus 2. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस क्या आना चाहिए बताओ? सीक्वेंस में, इफ वी फॉलो द सीक्वेंस, फोर्स के बाद क्या, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए बोलो? कैन यू प्रेडिक्ट? Energy. हाँ, एनर्जी और वर्क डन है ना. वर्क डन. तो वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करती है. देखो नेक्स्ट वन इज दिस वन. वर्क और एनर्जी आल्सो, व्हाट एवर सपोज वी डू द वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, नॉट ओनली काइनेटिक पोटेंशियल, heat energy, electrical energy, all will have the dimension of work. And torque also. Torque, you have heard this word torque? पढ़ा था हम लोगों ने? कभी पढ़ा तुम लोगों ने torque क्या होता है? torque जब हम डोर ओपन करते हैं ना तो फोर्स लगाते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस ऑफ टर्निंग. जो रेडियस ऑफ टर्निंग होती है, कहाँ से टर्न हो रहा है, वहां से वो डिस्टेंस ले लो. और टॉर्क का भी सेम फार्मूला आएगा. बट टॉर्क इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. इट इज नॉट वर्क, बट फार्मूला वाइज इट इज सेम. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना. तो F इनटू डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क का चैप्टर हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में. इट इज नथिंग बट ए R क्रॉस F. ऐसा होता है टॉर्क का फार्मूला. वेक्टर क्वांटिटी होती, क्रॉस मींस
वेक्टर क्वांटिटी है वो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आर इज द रेडियस, एफ इज द फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रेडियस एंड डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन सेम आएंगी, एफ एस है ना, एस लिख लो या एक्स लिख लो, जो भी लिखना है, एफ एस। तो फोर्स का क्या सीखा हमने, ऊपर सीखा ये फोर्स, ये वाला। इसमें एस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखूं मैं एम एल टी माइनस टू एंड डिस्प्लेसमेंट का एल मोर, वंस मोर मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये क्या हो जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार काम आता है। You should remember this always. You know? Clear? Sir, No problem. Yeah. is there Yeah. a relationship between torque and horsepower? नहीं, power is different physical quantity. Torque is different physical quantity. Torque का मैंने बताया radius of turning into force, है ना। और power में क्या होगा, work done upon, horsepower means power. Power is work done upon time. Okay. तो इसी को अगर हम टाइम से टॉर्क की डायमेंशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हॉर्स पावर की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो आगे है पावर, इसके बाद ऑफ कोर्स एनर्जी डेंसिटी इज द अदर वन, देन पावर आएगा। ओके, एनर्जी डेंसिटी इज आल्सो समटाइम्स, एनर्जी की डेंसिटी के डायमेंशंस यू आर रिक्वायर्ड टू राइट समटाइम्स। तो व्हाट शुड बी द एनर्जी डेंसिटी, हाउ डू वी डिफाइन द एनर्जी डेंसिटी, कैन somebody predict? Energy Energy upon density. volume. ऑफ कोर्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है ना। ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी ऊपर हमने सीख लिया एनर्जी का, जैसे मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का क्या लिखा हम लोगों ने अभी, एम एल टू टी माइनस टू, वॉल्यूम का क्या सीखा हमने, एल क्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, एम वन है, एल कितना आएगा, -1 और +1 क्या आएगा एल का बताओ। ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2 - 3 विल बी -1 और t - 2 एज इट इज। तो भाई यहाँ पे एल स्क्वायर है और नीचे एल क्यूब है, तो नीचे एल बचेगा, वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी आल्सो यू शुड रिमेंबर, बिकॉज इन डिफरेंट चैप्टर्स different energy densities will be there, electrical energy density, magnetic energy density, so they will have very complicated formula, but if you remember it is nothing but energy per unit volume, so you can just directly write from here. Otherwise it will be very difficult to write with that formula which comes in that chapter. Energy density का formula ऐसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये फार्मूला आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायमेंशन निकालने में बहुत टाइम लगता है, और ये परमिटिविटी इसकी डायमेंशन निकालने में बहुत टाइम लगता है। बट इफ यू रिमेंबर एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, बेसिक फार्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यू कैन राइट फ्रॉम दिस रिलेशन, लिविंग दैट। उसको डायरेक्ट नहीं करना, फिर उससे नहीं करना, यहाँ से करना। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होती है, उसका भी सेम डायमेंशन रहेगा। ऑल एनर्जी डेंसिटी विल हैव सेम डायमेंशन, लेट इट बी एनी चैप्टर। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, let it be any type of energy, all will have same dimensions. All right, so इसमें एक any other point you want to ask, यहाँ तक पूछ लो कुछ, anything, any difficulty? प्रेशर का करके दिखाएंगे इसके बाद, पावर है इसके बाद ऑफ कोर्स, बट प्रेशर, ओके, I will write pressure first, then power. करके बताइए प्रेशर का जल्दी से, लेट मी सी व्हाट इज योर आंसर कमिंग। दिस इज 9, पावर आई विल डू इट एट आफ्टर दिस क्वेश्चन। अच्छा, प्रेशर, ओके ठीक है, बोलो प्रेशर का आ गया, प्रेशर का ml फार्मूला याद है तुम लोग? -1 t -2. ओके, व्हाट इज द फार्मूला यू आर यूजिंग प्रेशर के लिए, बोलो। Force upon थ्रस्ट area. अपॉन, हाँ, थ्रस्ट अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स की पुट कर दो, यहाँ से ऊपर है फोर्स की ये वाली. इफ यू फॉरगेट यू कैन गो बैक टू द बेसिक्स. अगर नहीं याद आ रही नो प्रॉब्लम. एफ इज इक्वल टू एम ए, मास का पुट कर दो, एक्सेलरेशन का पुट कर दो, है ना. तो फोर्स इज एम एल टी माइनस टू divided by area L square. So if you simplify, this will be m1 L minus 1 T minus 2. So what is the answer of this question? Can you do this question? Energy density. सामने ही है ये. सेम है क्या दोनों? देखो, कैन यू चेक बोथ आर सेम? Energy density and pressure, do they have the same dimension? Answer is yes. So this is the drawback, and you don't come to know whether it is pressure or energy density. But questions are coming, which physical quantity has same dimension? That of pressure. So answer will be energy density. Same है कि नहीं? Check कर लो. Just be convinced yourself. क्या लिखेंगे आंसर? एनर्जी डेंसिटी है ना, यहाँ पे लिख दो आंसर. एनर्जी डेंसिटी हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ प्रेशर. एक और फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी यहीं पे, वो भी सेम डायमेंशन है उसकी. देखते हैं ये इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे ना हम जब, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी के चैप्टर में वी कम अक्रॉस दिस टर्म कॉल्ड स्ट्रेस, है ना. इसको फिर से लिखो. दैट आल्सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. किसी सरफेस पे कितना फोर्स लगाते हैं और कितना एरिया है. तो यू विल आस्क मी सर ये व्हाट इज द डिफरेंस देन. इसके ये भी तो सेम है, बट प्रेशर में परपेंडिकुलर फोर्स होता है हमेशा. जैसे ये सरफेस है ना, तो परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा. और स्ट्रेस में एंगल पे लगा सकते हैं फोर्स, इनवर्ड या आउटवर्ड. स्ट्रेस में दोनों फोर्स लगा सकते हैं, है ना. एंगल पे लगा सकते हैं, टेंजेंशियल लगा सकते हैं ऐसे. तो स्ट्रेस इज फोर्स, दिस इज आल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया. इसका भी सेम आ जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. ठीक है. तो डिफरेंस हम लोग सीखेंगे चैप्टर में. व्हेन वी सी द चैप्टर इलास्टिसिटी, वी विल सी हाउ मेनी टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस आर देयर. 3 टाइप्स की होती है. ऑल विल हैव सेम डायमेंशन, सेम एज दैट ऑफ प्रेशर. तो ये अपने को तीनों देखो, दिस वन एंड दिस. यहाँ पे ऐड कर दे एनर्जी डेंसिटी एंड स्ट्रेस. बोलो यहाँ तक. दिस टर्म इज न्यू फॉर यू, but this much you can understand. There is no difficult, no, it is not difficult to understand. Stress is force upon area. Force can be at angle, but whereas in pressure it is perpendicular always. ये difference है बस. ठीक है. तो shall I show you all together? Do you have any problem in any of them? Why we are learning this? इसमें देखो, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, which of the following pairs with, ऐसे क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. Which of the following pairs have the same dimensions? So one of them will not have the same dimension. So you have to pick up that correct option. And otherwise, in your papers and all, write the dimensions of so and so physical quantity. And applications are also there. So various ways question can be asked. Unless we know this dimension formula, we cannot do a, okay, we cannot do further question. Make it mute. किसका है थोड़ा सा? Just make it mute. Whose mic is on? Harshada, make it mute. Okay. Next one is power. Power already I told you. Power is what? Power is what? Rate of work done. Work done upon time. है ना? Rate means time से divide करना पड़ता most of the time. Work done. Work upon time. तो वर्क का सेम एनर्जी एंड क्या है? देखो वर्क का मैंने बताया था, लर्न कर लो. एम एल 2 टी माइनस 2 अपॉन टी, है ना.
तो ये क्या आ जाएगा आपका फार्मूला आ जाएगा m L2T कितना आएगा T-1 और -3 क्या आएगा बोलो जल्दी से -1 -3 -3 हो जाएगा ये इट विल बी -3 ऑलरेडी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा ऊपर तो दिस इज फॉर पावर और हॉर्स पावर और एनी अदर पावर हॉर्स पावर इज द यूनिट इन फैक्ट हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर big unit of power otherwise unit of power क्या है watt है linear momentum do you remember momentum पढ़ा था हम लोगों ने 9th में Mass उसी into को velocity. हाँ उसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं व्हाई वी कॉल इट लीनियर मोमेंटम बिकॉज एक एंगुलर मोमेंटम भी अभी आएगा जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना तो देयर विल बी एंगुलर मोमेंटम तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम in this 11th standard one will be linear it is nothing but a momentum which you have seen in 9th standard mass into velocity mass into v तो मास का m हो जाएगा और v का lt -1 तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग m lt -1 ठीक है impulse you know impulse have you heard the word impulse झटका जोर का झटका या झटका है ना impulse in fact sudden when we apply sudden force onto the hammer say suppose we are hitting the bat hitting the nail with the hammer or hitting the ball with the bat so we say there is impulsive force है ना sudden force से impulse बनता है anybody remembers क्या formula है impulse का was it there in the 9th it was not there है ना impulse बोलो can you try what should be the formula of impulse force को किससे मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ f into t प्रोडक्ट ऑफ फोर्स into टाइम है ना कितनी देर कांटेक्ट में था सपोज बॉल को हिट किया हमने बैट से फॉर हाउ लॉन्ग इट वाज इन कांटेक्ट विद द बैट और हैमर से हिट किया उसको नेल को तो फोर्स इनटू टाइम फॉर विच फोर्स वाज अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम फॉर विच फोर्स वाज अप्लाइड क्या आएगा फोर्स का क्या है बताओ फोर्स का m into l into t minus 2 टाइम का t तो t मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ तो क्या आ जाएगा m l t minus 1 और क्या t minus 3 So my next question is what? Which physical quantity has same dimension? Just mute it. Okay, which physical quantity has same dimension as the impulse? Which physical quantity has same dimension as that of impulse? Can you Momentum. tell me? Momentum or linear momentum. साथ में ये देखो, just we are trying to write the dimensions which are of physical quantity which have same dimension because it will help you in competitive examination also. तो देखो linear momentum and impulse दोनों के same dimension आ रही है. हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे impulse is also equal to change of linear momentum. Linear momentum का symbol p लेते हैं हम लोग, तो delta p के बराबर होता है. Both are therefore both have the same dimension. Both have some relation. So momentum or linear momentum. Let me write full name because angular momentum is also there. Linear momentum. All right, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो. ये सब terms you know already, and we are not taking the new terms. Hardly 1 or 2 were there. Okay. यहाँ पे था क्या क्वेश्चन? ओके, जस्ट रिपीट इट. और कोई क्वांटिटी यू वांट टू टेल? ओके, दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है. माय क्वेश्चन इज, यदि होमवर्क में दे दूं आपको
देखो, if gravitational force is given by, ये 9th में था, gravitational force between two masses is product of two masses m1 into m2 divided by square of the distance between them into gravitational constant. G क्या है ये? Anybody remembers? G is what? Gravitational constant. लोकल की, इंटरनेशनल की, यूनिवर्स, कौन सा कांस्टेंट है? Universal. Universal. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ, डू यू रिमेम्बर इट्स वैल्यू? किसी को याद है कितनी वैल्यू है? 6.67 into 10 to the power minus 11. अभी तुम लोग 11th में हो ना, तो 11 आता है यहाँ पे। ठीक है, ये 11th के चैप्टर में है, 12th के चैप्टर में 12 आता है, वो कूलम्ब्स लॉ उसमें, कूलम्ब्स लॉ के कांस्टेंट में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू राइट द वैल्यू, वी हैव टू राइट इट्स डायमेंशन, इसके डायमेंशन लिखने हैं। G is the universal gravitational constant, write its dimension, write its dimension। G की डायमेंशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे? डी स्क्वायर को इधर भेज दो, मास को नीचे भेज दो, तो G विल बी एफ डी स्क्वायर, एम स्क्वायर कर लो स्क्वायर, दोनों मास की डायमेंशन, एफ की डायमेंशन पुट कर दो, डी की, डी द डिस्टेंस, ये तो पता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स है ना, कि लिख दूं मैं? देखो ये दो पार्टिकल्स है m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस डी है। कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है, कि दोनों हो सकते हैं? ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो डी डिस्टेंस है, तो जी की डायमेंशन निकालनी है, ये दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख दिया मैंने, फाइंड डायमेंशंस ऑफ जी, नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हियर रेड कलर से। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो जी को लेफ्ट साइड में कर लो, बाकी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करके पुट ऑल द डायमेंशंस एंड सिंप्लीफाई इट, whatever answer comes that will be your final answer। ठीक है, so this is homework problem number 1। ठीक है, shall we move on to the next one? यहाँ तक ठीक है? कोई पॉइंट पीछे का do you want to clarify? No, sir, it's No? clear. Okay, तो कुछ और ट्राई करते हैं। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए? पहले फार्मूला आइडिया लगाना पड़ेगा ना, देन डायमेंशन लिखना आसान है। इफ यू नो द फार्मूला यू कैन इजीली डू द डायमेंशंस, है ना? बोलो, रेट ऑफ फ्लो इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? कैन यू प्रेडिक्ट? Distance upon time. सॉरी, Distance traveled upon time taken. नो, डिस्टेंस ट्रेवल अपन टाइम इज द स्पीड, ये रेट ऑफ फ्लो। फ्लो, सपोज कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है या गैस फ्लो हो रही है, तो क्या होना चाहिए? डिस्टेंस अपन टाइम विल बी द स्पीड ऑफ द फ्लो, उसको Sir, हम is स्पीड ऑफ it फ्लो बोले। इज is, इट? बोलो। is it something to do with the density? नो, यू आर क्लोज बट नॉट डेंसिटी। एनीबॉडी एल्स? Sir, there is this property because of which honey Hmm. flows like slower than water. वो आगे, वो आगे, वो विस्कोसिटी, वो आगे, इसके बाद Viscosity. वो आगे, वो दैट इज नॉट, नो, दैट इज अहेड ऑफ दिस, आफ्टरवर्ड्स। बट रेट ऑफ फ्लो सिंपल, वाटर फ्लो हो रहा है सपोज, किस रेट से फ्लो होगा, किससे मेजर करेंगे हम लोग? वेदर मास, मास पर यूनिट टाइम होगा। रेट में जनरली टाइम आता है नीचे ना, रेट में टाइम से डिवाइड करते हैं, किसको? मास को डिवाइड करेंगे कि वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे? तो हियर इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और गैस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अभी सिंपल हो गया, तो वॉल्यूम का क्या लिखेंगे? बोलो, वॉल्यूम का लिखा था हमने ऊपर, एल क्यूब था, टाइम का टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m0 मास नहीं है, वॉल्यूम है केवल, है ना, L3t माइनस 1। तो ये फ्लूइड के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग, बट दिस मच समटाइम्स इट इज, ऑल द डायमेंशंस आर टॉट यू इन द स्कूल, 11 12 सभी चैप्टर के पढ़ा देते हैं, देन दे आस्क यू द क्वेश्चन
तो therefore I am teaching at least 11th standard के बता रहा हूँ, 12th का ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, because unless you know the physical quantities you cannot do the dimensions. But this much you can remember, this is not difficult. What about these plane and solid angle? बोलो Dimensionless. क्या आएगा? प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस है ना? तो आर्क का क्या आएगा? एल, इसका भी एल, तो क्या होगा? m0 l0 t0, ये भी सेम आएगा ना? इसमें क्या है? एरिया, एरिया अपॉन आर स्क्वायर था क्या? तो एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये भी सेम. कैन यू टेल मी, इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस. व्हाट वी कॉल इट? डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन. So can you tell me some more physical quantities which doesn't have the dimensions? बोलो, और कोई बता सकते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की डायमेंशन होती है, साइन थीटा की डायमेंशन होगी क्या? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर मींस लेंथ, हाइपोटेन्यूज मींस लेंथ. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर ऑल डायमेंशनलेस. लिख दूं डायरेक्ट? समझ में आ गया? m0 l0 t0, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लो, sin थीटा या cos थीटा. cos थीटा will be adjacent upon hypotenuse l by l, ये सब l by l आएगी. So all trigonometrical ratios are dimensionless. Plane angle is dimensionless. Solid angle is dimensionless. Refractive index, will it have dimensions or will it be dimensionless? बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? ओके बताओ, डायमेंशन लिखो इसकी, राइट द डायमेंशन. तो पहले फार्मूला लिखो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द फार्मूला? सॉरी, सी अपॉन V. वी. हाँ, तो सी की क्या डायमेंशन होगी? वी की क्या LT डायमेंशन minus होगी? 1. एल टी माइनस वन. सी की सेम, हाँ सर. तो क्या होगा? m0 l0 t0, ये भी डायमेंशन में. सर नंबर्स भी डायमेंशनलेस होता है. क्या? विच वन? नंबर्स. ओके, नंबर्स. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नंबर्स जो है, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, चेकिंग द करेक्टनेस, वहां पे मैं पूछूंगा. तो वैसे तो डायमेंशनलेस होने चाहिए, बट इट इज वे हाउ डू वी पुट इट इन द फार्मूला, है ना? नंबर डायमेंशनलेस होने चाहिए. जैसे मोल एक नंबर है बट उसका डायमेंशन है. मोल तो ऑफ कोर्स उसका फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर ही, एवोगाड्रोस नंबर वगैरह में मोल्स. we'll come back to that, जहाँ पे numbers का हम separately discuss करेंगे. In fact, I will give you the question itself. I will ask you the dimensions. Number की dimension लिखने के लिए बोलूँगा मैं, whether dimensionless or, तो depends upon situation है ना, कहाँ पे वो number आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, independent आ रहा है, left side में क्या है, right side में क्या है. Okay. So okay, you put, if you find numbers are dimensionless, this is the next question for you. You have to write all the right name of all the physical quantities having no dimension, means dimensionless. तीन तो याद लिख गई तुम्हें, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये तीन तो लिख ही सकते हैं. एनी अदर यू कैन जस्ट टेल मी. ये 4 हो गए इनफैक्ट, 1 2 3 4. एनी अदर यू कैन प्रेडिक्ट? डू यू नो रिलेटिव डेंसिटी? किसी को रिलेटिव वाले, मोस्ट ऑफ द रिलेटिव वाले टर्म्स में हो सकता है डायमेंशनलेस है. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती, किसी को पता? अच्छा, डेंसिटी क्या होती? मास अपन वाली में. रिलेटिव डेंसिटी पता है? किसी ने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी? ठीक है, उसको फ्लूइड के चैप्टर में आएगा. रिलेटिव डेंसिटी वाटर से रिलेट करती, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये भी डायमेंशन ले सकते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं.
We can call it specific gravity of the fluid or liquid or even any solid की भी बोल सकते हैं। Sir, और कोई dimensionless याद आ रहा है आपको? Any other you are getting dimensionless, any physical quantity? So you may remember, there may be many more, just you will come across and then you add it. After writing these four, leave some gap and writing further dimensionless quantity. Now follow up question है, एक और question है, then you ask your doubts. Next question मेरा इसी पे बेस ये है, देखो this is interesting question. देखो ये क्वेश्चन है, can any physical quantity has unit but no dimension? यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। ये होमवर्क में करना है कि यही बताना है? ओके ठीक है, दिस इज आल्सो होमवर्क। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। Somebody Yes. wanted to ask something. Sir, I had this question. Why is relative density related just with water? I mean, why not any other? नहीं तो रिलेटिव डेंसिटी वाटर के साथ है और बाकी के लिए कुछ और टर्म्स आएगा, जैसे रिलेटिव अदर चैप्टर्स में रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड के लिए पहले डिफाइन की गई है, बाद में रिलेटिव एनी अदर एग्जांपल यू कैन गिव रिलेटिव में? रिलेटिव velocity. रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। और So तो force can be relative. नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी जो है एंड अदर आल्सो आई थिंक इन किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या दूसरा नाम है? रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, वी दैट there will be one major quantity, one physical quantity for air, for vacuum, उसके साथ रिलेटिव हो जाएगा बाकी मीडियम। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आएगी तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी वी कॉल इट देयर, है ना। तो परमिटिविटी को वैक्यूम विल बी टेकन स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आता है। ऐसे फ्लूइड्स में रिलेटिव डेंसिटी आता है ना। डिफरेंट चैप्टर्स में रिलेटिव कैन बी डिफरेंट, बट दिस टर्म इज यूज्ड इन द फ्लूइड। तो वहां पे वाटर इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड वन, अदर वन उसके रिलेटिव में। उसमें क्या होता है, इजी टू रिमेम्बर दैट वैल्यू। अगर इफ वी कीप ऑन राइटिंग फुल डेंसिटी, है ना, जैसे मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 into 10⁻³ इट इज बिग थिंग टू रिमेम्बर। ओनली रिलेटिव डेंसिटी याद करना है, हाउ मच हैवियर देन वाटर। टू मेक द थिंग्स इजी वी यूज द वर्ड रिलेटिव। ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी होता है, तो डिफरेंट चैप्टर्स में it will be related with some other, always not with water. ठीक है? Sir, but why Clear? can't force be relative? फोर्स रिलेटिव, उसके कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना हमें। फोर्स तो किसी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। Yes, sir, but तो then gravitational force is kind of relative, isn't it? Kind of ग्रेविटेशन varies, right? किसके रिलेटिव है? This is the property of two masses, gravitation force, masses के बीच का फोर्स है। There is electrical force, तो उसको हम रिलेट नहीं कर सकते ना। ग्रेविटी वो अपना इंडिपेंडेंट फंडामेंटल फोर्सेस में काउंट होते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर, यू नो? तो वी हैव द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, तो उसको एक दूसरे का रिलेट नहीं करते। यूनिफिकेशन का चल रहा है कि whether they can be unified, single formula can be there, that work is going on. We cannot write relative force from, because they are the different physical quantities, है ना। देखो रिलेटिव में भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी में भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्सेस को, वेलोसिटी जो ऑब्जर्वेशन है, मोशन से रिलेटेड है ना, तो वी आर ऑब्जर्विंग। फोर्स को हम नहीं ऑब्जर्व कर रहे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वी आर अप्लाइंग ऑन टू द अदर बॉडीज, अदर बॉडीज आर हैविंग द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वी कैन नॉट रिलेट देम। जिन जहां रिलेट कर सकते हैं वहां पर रिलेटेड वी आर यूजिंग इट, ठीक है। ऑलराइट, ओके।
तो ये हो गया आपका होमवर्क नंबर 3 आई थिंक, है ना। वेवलेंथ, वेवलेंथ इज सिंपल वन। हाउ डू यू डिफाइन द वेवलेंथ? बोलो। लेंथ ऑफ वन वेव, है ना। वेवलेंथ का क्या आएगा? m0 l0 l1 not e0 m0 l t0, ठीक है। व्हाट अबाउट चार्ज? ओके, चार्ज का बता सकते हैं? बोलिए। एनीबॉडी कैन? चार्ज का IT. Q is equal to IT, है ना। करंट इनटू टाइम। क्या होगा इसका? बोलो। 80. सॉरी, 80 है ना। तो m0 l0 t1 और a, mlt हमने एक साथ लिख दिया। mlt है रिटर्न, इसका तो करंट का a यहाँ पे लिखा, टाइम का t यहाँ पे लिखा। mlt should be together, or you can write 80 also. तो charge is current into time, because current is equal to I is equal to Q by T. तो charge Q is equal to IT, है ना। तो करंट का हमें A पता है ना, देखा था हमने 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन सिंबल A था, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिंबल दे आर यूजिंग I also, but we follow NCERT book, whatever symbol is there that will clear. After that कौन सा आना चाहिए? बोलो। Any other? बोलो, what should be the next? Can you write potential Frequency. difference? हाँ, फ्रीक्वेंसी का छूट गया है ना, थोड़े बहुत 11th की और करनी है, 12th के उसमें आ गए हम लोग, एज पर द बोर्ड एग्जाम, एज पर द सीबीएसई, ये 12th के आ गया। फ्रीक्वेंसी का बोलो। ओके, चार्ज को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, 11th का पहले एक साथ रखते हैं। नंबरिंग आई एम नॉट डूइंग, नंबरिंग बाद में देखते हैं, इसको चेंज कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? बोलो। t-1. फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड का टी होगा, तो m0 l0 t-1। ओके, और टेल मी सम मोर फ्रॉम योर साइड। ओके, कैन शैल वी रिवाइज दिस जो अभी हमने किए? इसके बाद चार्ज के बाद आई वांटेड टू आस्क यू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद है? बोलो। हाउ डू यू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस? Work upon आर charge. वोल्टेज, हाँ, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क का तो ये हमने ऊपर सीखा था, चार्ज का भी सीखा। कहाँ गया ये वाला? ओके, विल डू इट टुमारो। पहले देख लेते पीछे का, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का नीचे लिखा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है इसमें, ठीक है। तो वी हैव टू ब्रेक, ओके, विल आई विल रीअरेंज एंड सीक्वेंस थोड़ी सी मुझे रीअरेंज करनी पड़ेगी। 11th के पहले करेंगे, सब 12th के बाद। देखो, यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस? देखो हमने क्या देखा था, सपोज आपका साउंड अगर गया तो सुन लो फिर से। सीक्वेंस में देखो, एरिया एल स्क्वायर है ना, दो लेंथ की 2 डायमेंशन है, मास की 0 है। वॉल्यूम लिखना है एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो गया, बाकी 0। मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास का 1 डायमेंशन है, एल का -3 डायमेंशन है। ओके, मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, both will have same dimension, m0 l t-1। एक्सेलरेशन में एक बार t से और डिवाइड कर देंगे, बिकॉज चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी
चेंज का वही आएगा जो मेन फिजिकल क्वांटिटी, जीरो नहीं लिखना है ना। बोलोगे सर वेलोसिटी का lt -1, ओके चेंज ऑफ वेलोसिटी मुझे आस्क, लेट मी आस्क यू चेंज ऑफ वेलोसिटी, जीरो होगा कि कुछ और होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 minus v1, LT -1. इसका lt -1 लिखेंगे, ये नहीं कि सर v2 का lt -1 माइनस lt -1 0, रॉन्ग, कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे। सर v2 इज द वेलोसिटी, उसका भी मैंने lt -1 लिख दिया, v1 इज द वेलोसिटी, उसका भी लिख दिया, सब दोनों कैंसिल हो गए, जीरो। ऐसे नहीं, देखो इसको ऐसे सोचो, थिंक लाइक दिस। Suppose object has the velocity, initial velocity is say 10 meter per second, final velocity is 15 meter per second. So 15 minus 10 will be 5 meter per second. So change of velocity will have the dimension of velocity only. Symbol नहीं, they will have certain quantities, certain magnitude, उसको subtract करना है, dimension को subtract नहीं करना, then it will be zero. So change of velocity and velocity will have same dimension. Change of acceleration and acceleration will have same dimension. So this point you keep it in mind, है ना? Clear ये रब कर देता हूँ, this was just example. तो homework करिए G की dimension, viscosity and all we'll see it tomorrow. Viscosity का रहेगा this which you were telling. So I will tell you the formula first, then you can find out. Okay, sir. Shall I stop it now? हाँ कुछ पूछना है बोलिए. Just ask. Anything? No, sir, no doubts. Okay, so complete the homework and we'll do some more and applications tomorrow. Yes, sir. Okay, thank you then. Thank you, sir.